Assalamualaikum. Finally, I'm Dr. Sabeen Jamal. Today, I'm going to discuss with you dermatological condition in children. If try to be attentive, and if you have, because it is a very important topic, clinically as well as from exam point of view. If you have any problem, I hope you can hear me loud and clear. If you have any problem, you are more than welcome to ask. Okay, so let's start with our lecture today. That is dermatological condition in children. First of all, brief introduction. Skin is the largest and the most superficial organ of the body. Around one-third of the pediatric outpatient visits involves a dermatological complaint. In addition to a wide variety of primary skin disorders that we see during the childhood, skin is a marker of underlying systemic ailments and many hereditary symptoms. So this is important. It is the largest and the most superficial organ of the body, and we have around one-third of the pediatric ovary load coming with dermatological problems. Now, this is a diagram of the human skin. As you can see, this is a cross section. These are the hair, and these are the different layers of the skin. Okay, stratum corneum, granular layer, spinous layer, basal layer. Now, this is the sebaceous gland, this is the sweat gland. You must have read them in detail during your pathology histology. What is important that there are certain receptors for touch, heat, pain, pressure in the skin, and they start to mature at around first week of life, and they continue to do so till 6 months of age. The subcutaneous tissue protects from trauma, heats, storage of heat, and conserves the calories. Okay. Right. I hope you can hear me. I don't think so there is any problem in listening. Okay. Now, the functions of the skin, mainly protection, thermoregulation, immunological response, barrier to water loss, secretions of waste, and sensation. Protection, as I've already mentioned, it is the largest organ. It protects our body from the outside trauma. Whenever you are faced with any sort of trauma or injury, skin is the first organ of the body that takes the brunt of the injury, right? Thermoregulation, it maintains the temperature of the body. If it is hot or it is cold, extremely hot, extremely cold, it is our skin which through its very complex thermoregulation mechanism keeps the temperature of the body at a constant level. Immunological response, this is a very important function of the skin. You must have read different types of hypersensitivity reactions. These are usually manifested in various ways through the skin. Barrier to water loss, right? It prevents excessive loss of water from our body that usually happens during the extremely hot weather. Because if skin is not there and there is excessive loss of water and electrolytes in the body, what will happen? We will be dehydrated. And there are very dire consequences to this dehydration. Secretion of waste. What waste? Can there anyone tell me? Which? सुन रहे हो सो रहे हो नहीं आपके क्या है स्वेट सिक्रीशंस हैं ठीक है ना स्वेट में आपके जो सॉल्ट्स हैं उनका लॉस होता है वाटर का लॉस होता है सीबम है ये सारी सिक्रीशंस है ना और स्वेट उसके बाद सेंसेशन कौन सी सेंसेशंस टच हीट पेन टेम्परेचर these are all the sensations that we can feel with the help of the skin. There are certain functional and structural differences between an adult skin and an infant skin. First, the important thing is the epidermal thickness, which is around the same in both the adults and the newborn, that is around 55 millimeters. Cell attachments, hemidesmosomes, desmosomes, this is normal in both cases. Dermis, in case of a newborn, is low in collagen and elastic fiber, while there are fewer melanosomes in a newborn as compared to an adult. And as
I speak of the eccrine gland and sebaceous glands. For the first 2 to 3 years of life, there is no neurological control for these glands. While obviously this control is normal in an adult, normal adult, healthy adult. There are no terminal hairs in the newborn, however, normal hair distribution in case of an adult. Okay. Actually, how will you approach a case that has come up to you with the dermatology? First important thing is the history. Unless you take a proper detailed history, you won't be able to examine the patient correctly. This applies to every patient, whatever complaint. Unless you have taken correct history, you won't be able to examine the patient in the light of history. And you may miss very important findings that will eventually affect your diagnosis and management. So, foremost and the most utmost important thing is the history. Then comes the examination. Careful inspection of the entire cutaneous surface. Many skin diseases can be diagnosed through their morphological appearance. You should identify the primary lesion. What is its size? What are the secondary changes in the skin surrounding it? What is the color of the skin change? What is the distribution under removal? So first, you have to identify whether it is a primary lesion. This is the main lesion that is responsible for the illness of the patient, or it is secondary to some underlying systemic illness. One. Second is what is the site of the lesion, where it is located. One, what is its size? You have to measure it. And what is its color? What is its distribution? And what is its arrangement? After this, you have examined the primary lesion. You should inspect the entire body surface, all mucous membranes, stomach, hair and nails, thoroughly examined under adequate illumination. सिर्फ जो एक को लीजन आपको सामने नजर आ रही है ना, आपने उसको देख के एग्जामिन करके साइड पे नहीं बैठ जाना. इंटायर बॉडी को आपने केयरफुली एग्जामिन करना है, पूरी बॉडी को कंप्लीट एग्जामिनेशन करनी है, थोड़ा एग्जामिनेशन करनी है. इसके साथ साथ आपने इसके ग्लूकोजा देखनी है, सारा अंदर से मुंह टावर देखनी है, एक बाल देखनी है, नेल्स देखनी है, हर चीज को, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ dermatological examination. Now, so what is the morphology of the lesion? There are certain primary skin lesions that are as a result of the initial pathological change. Then there are certain secondary skin lesions that result from external forces like scratching, pitching, infection, or healing of the primary lesion. Right? Now, this is a diagrammatic representation of different skin changes that you encounter while we are examining the patient. So, in order to reach correct diagnosis, you should be knowing some dermatological terms. This is a macule. बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? चलो भी आए पता चलता है कितना समझ गए. This is a macule, this is a nodule, this is a plaque, this is a vesicle, and this is a bulla. Now, what is the macule? Macule is a change in the skin color that is flat to the surface of the skin, not palpable and less than 1 centimeter. ठीक है, ये देखो. Basically, skin का color change है. फ्लैट है. दूसरी चीज रेज नहीं है, पैल्पेबल नहीं है, इसको आप पैल्पेट नहीं कर सकते, फील आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको कोई उभरी हुई चीज नजर आए. दूसरी एक इम्पोर्टेंट थिंग इज साइज. दिस इज लेस देन 1 सेंटीमीटर. तो उसमें बेसिकली आपकी मैक्यूल की डेफिनेशन में 3 चीजें आ गई. 1, कलर चेंज इन स्किन. सेकेंड, फ्लैट, नॉट पैल्पेबल. थर्ड, लेस देन 1 सेंटीमीटर. ठीक हो गया? दिस इज अ मैक्यूल. And this is a patch. Patch, same thing है. फर्क सिर्फ साइज का. Skin color change, flat, not palpable, and size is more than 1 centimeter. ठीक हो गया? तो उसमें फिर वो साइज और कलर की बात आती ना कि साइज 1 सेंटीमीटर से कम है, फ्लैट है, कलर चेंज है, तो
क्या है? हाँ जी, जागो भाई, अभी तो 12 बज रहे हैं। वैक्यूम है, और 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसको हम वैक्यूम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पैच। ये एग्जांपल्स नहीं है, कैफेटेज, स्पॉट्स है, विटिलाइगो, व्हाइट फ्लैटून, जिससे तो ये है ना इसको साइज। अब देखो सराउंडिंग स्किन से इसका कलर क्या है? हाइपोपिगमेंटेड है या डीपिगमेंटेड है स्किन का कलर। क्वालिटी तस्वीर की अच्छी नहीं है। भारत ये देखो, हाइपो या डीपिगमेंटेड एरिया ऑफ द स्किन है, अपरेंटली फ्लैट है, और साइज क्या है? 1 सेंटीमीटर से ज्यादा पैच। तो दिस इज अ पैच। ठीक है, आगे चलो। Now, what is a papule and what is a cloud? Papule is a solid raised region with distinct borders, 1 centimeter less in diameter. ये अब क्या था, वो पहले फ्लैट था मैक्यूम, अब पैप्यूल क्या है? रेज्ड है, डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स हैं, और साइज इसका भी जैसे मैक्यूम का 1 सेंटीमीटर से कम था, इसका भी 1 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे फ्लैट है। नहीं, पैप्यूल है। तो लाइकेंस मोलस्कन कंटिन्यूस एग्जांपल है, याद रखो। इसके बाद यही वैक्यूम अगर साइज इसका बड़ा हो जाए, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, रेज टू फ्लैट टॉप रीजन एट द सेम बॉर्डर, एपिडर्मल स्किन चेंज लार्जर देन 1 सेंटीमीटर, दिस इज अ प्लाक। लाइक दिस इज अ प्लाक, दिस इज अ वैक्यूम। साइज का फर्क, बाकी चीज ऐसी है। रेज्ड है, डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से कम है साइज तो आप इसको कहेंगे पैप्यूल, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो कहेंगे इसको प्लाक। अब आगे, nodule is a raised solid lesion with indistinct borders and a deep palpable rheumatoid nodule, neurofiber। ठीक है, अब ये देखो क्या है, रेस्ड है, ठीक है, लेकिन इसके बॉर्डर्स इतने डिस्टिंक्ट है आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, और एक इसमें आप पैल्पेबल रीजन आपको सेंटर में मिल जाता है, डीप डाउन। रूमेटॉइड नोड्यूल्स, न्यूरोफाइब्रोमा नोड्यूल्स, ये क्या है? बड़ी दफा देखा होगा बहन भाई में से किसी को जाके आपने फुट्टे से स्क्रैच मार दी, ची से स्क्रैच मार दी, तो क्या बन जाता है? व्हील बन जाता है। व्हील क्या है? सर्कमस्क्राइब फ्लैट टॉप। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये है कि हम उसको उसके मार्जिन को डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड मार्जिन, ठीक है ना। फर्म एलिवेशन ऑफ स्किन, स्किन रेज्ड होती है with a well demarcated and palpable margin, urticaria। कोई चीज से खारिज करो ना, कोई चीज ऐसी रगड़ो तो वो स्क्रैच मार्क्स बन जाते हैं ना, इसको हम कहेंगे कि किसी चीज की कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए तो वो व्हील बन जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? कंफ्यूजन नहीं हो गया? वैक्यूल, पैप्यूल, पैच, प्लाक, नोड्यूल, व्हील, समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आ गया जी आपका वेसिकल और गोला। वेसिकल, रेज्ड लीजन फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड that is less than 1 centimeter in diameter. This is a vesicle. रेज लीजन है, ठीक हो गया। पहली वाली रेज थी लेकिन वो फ्लूइड फिल्ड नहीं थी। अब अगर इसमें पानी भर जाए और साइज इसका अलबत्ता कम हो 1 सेंटीमीटर से, तो हम उसको कहेंगे वेसिकल। लेकिन अगर यही वेसिकल का साइज बड़ा हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो उसको हम कहेंगे बुला। बुला इज बिग, वेसिकल इज स्मॉल। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे आपकी सिस्ट। Cyst is a raised lesion that contains a palpable sac filled with solid material, जैसे कि एपिडर्मल सिस्ट है, एडर्मल सिस्ट है। क्या है? रेज्ड लीजन है, palpable sac है, सॉलिड मटेरियल, मटेरियल सॉलिड है, ठीक है, बिल्कुल सब हार्ड है, सॉलिड साइड। लेकिन अगर यही फ्लूइड, यही लीजन अगर इसमें फ्लूइड की बजाय एक्सीडेंटिव फ्लूइड इकट्ठा हो, गंदा सा मवाद जमा है, येलोइश फ्लूइड जैसे इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे? पस्ट्यूल। पस से पस्ट्यूल। सिस्ट है तो उसमें आपकी सॉलिड मटेरियल है, पस्ट्यूल है तो गंदा सा पीला मवाद है, याद रखो। इसे सब अब ये सारी जो चीजें मैंने बताई ना, वैक्यूल, वैक्यूल, पैच, पस्ट्यूल, ये प्राइमरी रीजन है। सेकेंडरी रीजन है कोई अंडरलाइन डिजीज चल रही है बॉडी में, कोई भी डिजीज है, उसकी वजह से जो स्किन में चेंजेस आती है ना, वो सेकेंडरी रीजन, जैसे कि एट्रोफी है, डस्टिंग है, स्केलिंग है,
Atrophy में क्या होती है कि आपकी स्किन सरफेस गेट्स डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द थिनिंग और एब्सेंस ऑफ द डर्मस और द सबक्यूटेनियस। ठीक है, कोई सबक्यूटेनियस फैट किसी वजह से कम हो जाए, एब्सेंस हो जाए, तो स्किन थिन आउट हो जाती है, तो वो एरिया डिप्रेस हो जाता है, उसको कहते हैं एट्रोफी। Resting क्या है कि it is a dry exudate of plasma combined with the histamine which sits on the surface of the skin after acute dermatitis. क्या होता है कि acute infection हुआ skin dermatitis, उसके बाद क्या हुआ कि वो एक्सुडेट जो बना था वो ड्राई आउट हो गया। ठीक है, उसके साथ ड्राई आउट होने के बाद उसके कवर्स आ जाते हैं, उसको क्रर्नी कहते हैं, क्रस्टिंग। कोई चोट लग जाए, कोई दाना छिल जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उसके बाद उसकी क्रस्टिंग सी वो बन जाती है, जैसे टाइगर वगैरह में। फीलिंग क्या है, इसको हम कहेंगे क्रस्ट। Whitish plaques present on the skin surface in psoriasis, ichthyosis, desquamation refers to the peeling of sheets of scales after an acute irritation. Scaling क्या है कि whitish plaques होती हैं स्किन पे surface पे present होती हैं, ठीक है, these are called the scales। वहाँ पे आपको मिलती है ichthyosis में और psoriasis में। ये अभी मैं बात नहीं कहूँगी कि आपने कैसे अप्रोच कैसे करना है, लेकिन आपने सबसे पहले रैश को असेस करना है, देखना है कि फ्लूइड फिल्ड है। अगर फ्लूइड फिल्ड है तो फ्लूइड क्लियर होगा, तो क्या होगा, वेजिकल होगा। फ्लूइड जो है वो क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, पस्ट्यूल होगा। ठीक है, उसके अपने डिटेल है। तो इसके बाद पेपिलर है, अगर पेपिलर रैश है तो आपका अर्टिकेरिया मेलिस्कम कंटीरियर। अगर पेपिलर रैश नहीं है तो उसके बाद आपने देखते हैं कि एरिथमेटस रेडिश तो नहीं है। अगर रेडिश है देखिए स्केल्स नहीं बने हुए, स्केल्स में आपने देखना है कि स्किन का ब्रेकडाउन है या वो प्लांच करती है कि नहीं करती है। अगर रेड नहीं है कलर तो देखना है क्या कलर है। अगर ब्लू या ब्लैक रैश है तो आपने कोई वैस्कुलर मैल्फॉर्मेशन देखनी है। हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स हैं तो आपने लाइगो, पिग्मेंटोसिस अल्फा। उसके बाद अगर हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स है तो आपने नीवस शो, ठीक है, कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो ये सारे आपको, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये लीजन है क्या, तब तक आपको आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसका डायग्नोस कैसे करोगे। तो इसलिए बेटा ये छोटी हुई टर्म्स मैंने आपको बताई, आपने डेफिनेटली पहले मेडिसिन नहीं पढ़ी होगी, तो इनको जरा याद करो। अच्छा, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल स्किन फाइंडिंग्स दैट यू सी इन अ न्यूबॉर्न? बच्चा पैदा होता है, क्या क्या चेंजेस उसकी स्किन में आते हैं? One is Kisurna. It is a whitish lace covering on the newborn skin, and it is mostly composed of degenerated fetal epidermis and sebaceous secretions, and seen in all infants. ये देखो बच्चा, जब तुम लोग इंशाल्लाह जब आओगे ना, क्या जब वार्ड्स में आओगे इंशाल्लाह, नर्सरी में भी चक्कर लगा के शाम को देखना या सुबह भी, जो न्यू बॉर्न्स आते हैं ना, तो उनको पहले साफ नहीं किया होता, तो उनकी स्किन में एक ऐसी वाइटिश ना टिक्स ब्लैकनेस सी, तो हाथ लगाने की दिल नहीं करता आपको कहूँगा, वो एक कवरिंग सी होती है। ठीक है, वो कवरिंग होती है ना जैसे फैटी सी, कहीं से उखड़ी हुई, कहीं से लगी हुई, तो वो उसको कहते हैं वर्निक्स एजियोला। क्या थी मोस्टली आपकी डिस्क्रिमिनेटेड स्किन होती है। Cutis marmorata, this is reticulated vascular mottling on the leg of a healthy newborn that resolves quickly with movement. Physiological response to cold है with resultant dilatation of capillaries and small balloons. और cutis marmorata that persists beyond the human period is a marker of glycemia 18 and 9. स्किन पे ना ऐसे करके निशान से बन जाते हैं, जाले जाले से बन जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये परसिस्ट करे तो फिर हमें और चीजें सोचनी पड़ती है। अगर परसिस्ट करेंगे तो फिर डाउन डाउन ही बच्चे, डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ये परसिस्ट होती है, ऐसे करके ना लेस लाइक पैटर्न होता है। आप बच्चे को गर्म कर दे, कपड़े से कवर कर दे तो ये ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ये डाउन सिंड्रोम वाले, ट्राइसोमी वाले बच्चों से उसमें ये गर्म चेंज नहीं होती, परसिस्ट करती है। अच्छा, अब neonatal hair loss. Neonatal hair at birth is actively growing in the anagen phase, but within the first few days of life, it converts into telogen hair. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मल सिग्निफिकेंट शेडिंग होती है फर्स्ट 3 to 4 मंथ। ठीक है, उसके बाद वो हैंडल करवाई और सारा जो बच्चे उसका ही फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस
हो जाता है प्रॉपर लेवल। Classification of disorders of infancy and child. अब मैं आगे आपके साथ मुख्तलिफ चीज़ें को डिस्कस करूँगी अंडर दिस हेडिंग। Transient skin diseases with retinal dermatosis, common congenital malformation of the skin, birthmarks, infections in infancy, viral infection, bacterial, fungal infection, infestations, genodermatosis, neurocutaneous disorders, metabolic nutrition dermatosis, cutaneous manifestation of cutaneous illnesses, and miscellaneous conditions. बेसिकली बेटा ये आपका लेक्चर जो है गामा का ये दो हिस्से हैं। आज जो मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल जो न्यूबॉर्न में चेंजेस आती हैं, उसके बाद बड़े बच्चों में जो चेंजेस होती है उसके तो नेक्स्ट एक लेक्चर आपका होगा जिसमें कि आपको हम लोग पढ़ाएंगे कि TD of different types of rashes that are associated with some infections. ठीक है? Neonatal dermatosis. Toxic erythema of the newborn, also called erythema toxicum pneumotorum, is a benign self-limiting eruption that is characterized by erythematous macules and plaques, 2 to 3 centimeter in size, with a tiny 1 to 3 millimeter central vesicle or pustule. ठीक है, ये देखो अक्सर आप लोगों को फैमिली में ना कोई पूछेगा कि जी न्यूबॉर्न बच्चा पैदा उसके दाने कितने निकलेंगे, दाने निकले, तो अगर आप इसको देखो ना तो फर्स्ट नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ पे होता है और 3 to 7 डेज में डिसअपीयर होता है। ठीक है, आप स्पेशली इसके बैक पे देखोगे ना तो आपको ये ज्यादा मिलेंगे ट्रंक पे, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज पे, और ये फर्स्ट वीक में अपेयर होते हैं और बाय द एंड ऑफ 7 डेज ये डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने उनको यही रेफरेंस करानी कि इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दे विल बेसिकली क्या होते हैं, मैक्यूल्स होते हैं और प्लाक्स होते हैं, रेज्ड नहीं होते। ठीक है, सिंपल दरमियान में कहीं आपको छोटे छोटे इस तरह के वेसिकल्स या पस्ट्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, Malaria rubra या prickly heat, ये पेस्ट के दाने हैं। These are crops of superficial vesicles resulting from blockage of sweat glands. या sweat glands के आपके जो ducts होती हैं वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, तो कोई ब्लॉकेट आती है, वो नहीं स्वेट नहीं निकलता तो छोटी छोटी वेसिकल्स बन जाती है। वेसिकल्स क्या होती है, मैंने अभी बताया था। हाँ जी, वेसिकल्स क्या होती है, बोलो, किसी को नहीं पता? चलो तुम सबको फिर मैं पूछूंगी। फ्लूइड फिल्ड होती हैं कि नहीं, चलो अभी एंड में। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या करना बेसिकली क्या है, फ्रैक्चर एरियाज पे होती है, नेक पे, जॉइंट पे, एक्सिला पे, और सेकेंडरी इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस इज वेरी कॉमन। ट्रीटमेंट क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव हीट एंड ह्यूमिडिटी, लाइट क्लोथिंग, कूल बाथ एंड अवॉइडेंस ऑफ हेवी डाइट। बेसिकली बच्चे को ओवर ऐप नहीं करना, साफ सुथरा रखना है, नहलाना धुलाना डेली ताकि वो ग्लैंड्स ब्लॉक ना हो। और ट्रांजिएंट नीओनेटल पस्चुलर मेलानोसिस। ठीक है, अब इसके जो 3-4 हिस्से ट्रांजिएंट है, नीनेट में पस्ट्यूल्स है और मेलानोसिस है, यानी कि स्किन का कलर चेंज। ट्रांजिएंट, बिनाइन, सुपरफिशियल, नॉन इन्फ्लेमेटरी, वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स, extremely fragile, last for 24 to 48 hours. Commonly present at birth. Etiology not known. Normally in clusters under the chin, forehead, axilla, and nape of the neck. Disappears spontaneously by day 5. No treatment. इसमें और वो जो पहले मैंने बताया था, पहले वाला एरिथेमा टॉक्सिकम में क्या फर्क है, बताओ भाई। भाई ये मैक्यूल्स होते हैं, ये रेज नहीं होते, ये 7 to 10 डेज में डिसअपेयर हो जाते हैं। ये भी ट्रांजिएंट मेलानोसिस भी डिसअपेयर हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली बाय डे 5 to 6। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके वेसिकल्स और पस्ट्यूल भी इस तरह रेज होते हैं। ठीक है, वेसिकल भी हो सकते हैं, पस्ट्यूल भी हो सकते हैं। Neonatal acne, child presents with multiple discrete inflammatory papules, pustules, and closed comedones. Appear at around 2 to 4 weeks of age in the form of papules, evolve into pustules, and rarely present at birth. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, चीक्स पे, फोरहेड पे,
और टांग पे और एक्टो पे। अच्छा, अब क्या एग्जैक्ट कॉज वी डोंट नो, बट देयर इज सम मैटरनल प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंड्रोजन, और उससे क्या होता है कि लेकिन अच्छी बात यह है कि विदिन 3 मंथ से सॉल्व हो जाते हैं। अगर ना हो तो फिर आपने उसको टॉपिकल चिचिनाइन देनी पड़ती है, बेंजोइल पेरोक्साइड देनी पड़ती है। पर आपको पता हो ये ट्रीटमेंट प्लान है कि ये क्या है, मेरे एक्सपीरियंस का साइड देखो क्या है, मैटरनल एंड्रोजेंस जो ट्रांसफर होते हैं ना ट्रांसमिशन, उनकी वजह से ये चीज हो जाती है। Milia, these are multiple pearly white packings, 1 to 2 millimeter in size, particularly prominent on cheek, nose, folds, and forehead. May be present in the oral cavity, absent on side. Superficial epidermal inclusions that contain laminated cartilage material spontaneously disappear हो जाती है first 2 to 3 weeks, 3 to 4 weeks। अच्छी बात है, खत्म हो गई। ये वो एक छोटे सा नोट था, जरा थोड़ा सा और डिटेल में ये देखो, लेसी पैटर्न है, ठीक हो गया। और उसके बाद enteritis. It is a superficial inflammatory dermatitis of post skin surfaces. Heat, moisture, friction, and sweat retention induces maceration and inflammation. Second infection with bacteria like Staph aureus, between Staphylococci and fungal candida are. देखो इंटरटाइटल इम्पोर्टेंट है, क्या है कि जो पोस्ट इनके आपके एरियाज है ना, वहाँ पे प्रोलॉन्ग हीट एक्सपोजर, मॉइस्चर की रिटेंशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, स्वेट रिटेंशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, और अगर वो ठीक ना हो तो वो खराब हो जाती है, मतलब रेसिस्ट करती है, और इन द फॉर्म ऑफ मैसेरेशन। तो यहाँ पे कितना नॉर्मली जो हमारी लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं गाली स्किन, ये वो होती है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली ये कुछ एरियाज को होती है। Initially, the skin is red and slightly macerated, well separated, shows erythema of the religious surface, itching, burning, offensive odor, very common symptom. Treatment क्या है? Open wet compresses, dressing powder, antibiotics, और इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको आपने क्या करना है, कवर नहीं करना, उसको आपने ज़्यादा वो गंदा नहीं छोड़ना, सफाई का ख्याल रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट जो कंडीशन हमें बड़ा अपने आउटडोर्स में भी मिलती है आपको, कि घरों में जाओगे तो छोटे बहन भाई काजू वगैरह टाइप कॉमन आजकल बहुत हो गया, ये वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती है। क्यों होता है? Because the diaper area is often warm, moist, and contaminated with feces, which is full of microorganisms. Usually presents as any one of the following: irritant diaper dermatitis, candidal dermatitis, staphylococcal dermatitis. ठीक है, तो अब तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। आप वो चीजें अगर याद रखोगे तो एबल टू पिन पॉइंट कि हाँ भाई ये कैंडिडल रैश है, डायपर रैश है, ये इरिटेंट डायपर रैश है, और ये स्टेफिलोकोकल क्या वो मैम। तो आपका डायपर डर्मेटाइटिस को हम नैपी रैश, नैपिड डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि दिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ द स्किन दैट इज एसोसिएटेड विद वेयरिंग ऑफ नैपकिंस। Irritant contact dermatitis. I hope you are not having any problem. You are able to hear me, listen to me easily. अगर बेटा कोई है प्रॉब्लम तो चैट बॉक्स में लिख दो। मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे सो रहे हो कि जागते हो? चलो कोई बात नहीं। Rash is usually bounded by the margins of the napkin with sparing of the inguinal folds. After prolonged contact, a papillorosive eruption occurs with the formation of multiple small stars, which is called the Jacob's ulcers. Second infection is candidate. अब देखो ये सारा डायपर एरिया, डायपर एरिया में आपको रैश होगा, उसी के उसके अलावा नहीं आपको मिलेगा। और लेकिन जो आपके इन्वायरनल फोल्ड्स है ना, वो रिवर्स पे वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। क्यों होता है? वो होता यूँ है कि आपके जो एरिया है, डायपर वाला एरिया, वहाँ पे प्रोलॉन्ग रिटेंशन होती है यूरिन की, और उसकी वजह से आपको रिटेन रहता है, यूरिन रिटेन रहता है, फीसिस रिटेन रहती है। अब उसमें क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन।
कैसे मैनेज करेंगे? जो इरिटेंट आप उसको रिमूव कर दें, फ्रीक्वेंट डायपर चेंज कर दें, जिंक थी प्रोटीन जेली भी यूजफुल है, ऑयल मसाज बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और अगर कैंडिडेट हो तो फिर टॉपिकल एंटीफंगल्स लगाते हैं, और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आप उसको टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ये देखो, इन्वायरल फोर्स स्पेयर्ड है, सिर्फ आपके जो नैपकिन एरिया उसमें है, लेकिन ये इन्वायरल फोर्स पे आपको रीजन नहीं मिलेगी। अब कैंडिडेट डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि ब्राइट रेड इरप्शंस होती है विद शार्प बॉर्डर्स एंड पिन पॉइंट सैटेलाइट पैप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स, occasionally associated with oral thrush, intertriginous areas are involved. मैनेजमेंट क्या है? अब इसमें क्या है कि आपके इंटरट्रिजिनस एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे पिन पॉइंट छोटे 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 छोटे, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आपको नजर आएगी। ये देखो, अब इसमें आपके ये एरियाज भी इन्वॉल्व है, स्पेयरिंग नहीं है जैसे कि इरिटेंट डर्मेटाइटिस, डायपर रैश में। और ये छोटे 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 ऐसे ना आपके पैपुलर वेसिकुलर इची, ये स्केली आ गए, ठीक है ना, ऐसे सेटेलाइट रीजन। स्टेफिलोकोकल फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लिकेटेड करते हैं आपके रिटन रैशेस में, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उसमें आपके थिन वॉल पस्ट्यूल्स बनते हैं, एरिथमेटिस बेस होती है, ड्राई अप होते हैं रप्चर होने के बाद, और स्केलिंग अराउंड जो बेस हो जाती है। और मैनेजमेंट क्या है? आपने इसको कॉज को ट्रीट करना है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के साथ। अब ठीक है, इन्फेंटाइल सेप्टिक डर्मेटाइटिस, कैरियर गैप जिसको कहते हैं, this is characterized by erythematous scaly or crusted eruption over the area region sebaceous gland. etiology है इसकी, हेरिडिटी भी हो सकता है, इम्यून डिसफंक्शन भी हो सकता है, और कम्युनिटी की वजह से भी हो सकता है। कॉमन साइट्स क्या है? स्कैल्प, फेस, पोस्ट ऑरिकुलर एरियाज है। अच्छा, अब क्या है? ये देखो, क्रेडल कैप इसको क्यों कहते हैं? बच्चा ज्यादातर न्यू बॉर्न होता है, क्रेडल में लेटा रहता है, और उसके साथ टोपी बना के रखते हैं, उससे इसको एक्जिमा डर्मेटाइटिस डेवलप होता है, सेबरी डर्मेटाइटिस, ठीक है। और क्या होता है कि जिस एरिया में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे ब्लॉकेट हो जाती है, उसकी वजह से इरप्शन होती है। तो जैसे कैप के एरिया होता है ना, बड़ा कॉमन होता है, जैसे सब छिलके छिलके टाइप बच्चे की स्किन पे बन जाते हैं, जान की स्किन। अच्छा, फिर क्या होता है कि it begins with a non-eczematous erythematous scaly dermatitis of the scalp, spreads downward over the forehead, ear, eyebrows, nose and back. कुछ कहते हैं ना खुश्की हो गई सर पे, बड़ी कॉमनली माइक ये, दिस इज नॉट खुश्की, दिस इज क्रेडल का। कैल्शियम सल्फाइड शैम्पू देते हैं, और टॉपिकल वीक स्टीरॉइड्स भी अगर ट्रीटमेंट अब वो स्पॉन्ड करें तो हमें देने पड़ते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज द कॉमन कंजेनिटल malformation of skin? Congenital syphilis, it is a result of non-placental infection with the papilloma pallidum. The lesion usually appears between 3 to 8 weeks of life. 50% of the children are born to untreated mothers. They are infected. The lesions are reddish brown in color. Maybe macular. Macular भी हो सकते हैं, papillary भी हो सकती है, flat भी हो सकते हैं, raised भी हो सकते हैं। Site of predilection is mesenteria, palms and soles, ulcerative and so hypermedia. Syphilitic neuritis snuffles most important and frequent signs. Other features include bone abnormalities, anemia, thrombocytopenia, fever, particularly lymphadenopathy and coagulation. तो सिर्फ स्किन लीजन नहीं होती, साथ सिस्टमिक डिजीज भी है ना, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी आपकी पार्टिकुलरली होती है, लिम्फोडेनोपैथी होती है, और ब्लड स्पेसियस होते हैं। इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? एक्सोलॉगोस कराते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन कराते हैं, और ट्रीट कैसे करते हैं? एक्वस क्रिस्टल एंड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। यूनिटल हर्पीस सिम्प्लेक्स, इंसिडेंस इसका अराउंड 7 पर 100,000 लाइफ बर्थ है, मोस्टली फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ टाइप 1 HSP, टाइप 1 टाइप 2 वायरस के थ्रू होता है, 20% के थ्रू टाइप 1 होता है, 80% के थ्रू टाइप 2 होता है, और really through contact with an infected genital tract, mostly during delivery, intrauterine 5% cases. अच्छा, अब क्या है? प्रीमेच्योर ज़ोनोबस बच्चों में ज़्यादा कॉमनली आपको मिलेगा। Lesion appears around day 20, day 2 to day 20. Clustered papules होते हैं, you know, red papules and vesicles that become pustular, clustered and eroded over the papules है, vesicles है, अब इसके बाद erosion होगी और इससे सब clustering के साथ होगी। HS infections and newborn usually develop in one of the patterns. Localized to the skin, eyes, and mouth. In 40% of the cases, 35% of the cases, we have serious involvement, and multi-organ involvement in 25%. क्या करवाएंगे? Serology कराएंगे, viral culture से PCR करवाएंगे,
एंटी वायरल ट्रीटमेंट इंसेक्टो को देंगे 14 डेज के लिए, और अगर आपके पास स्किन की इन्वॉल्वमेंट है तो आप 14 डेज के लिए, अगर आपके पास सीएनएस सिस्टमिक डिजीज है इन्वॉल्वमेंट है तो 21 डेज के लिए। यूनिटल वेरिसेला ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको डेफिनेटली ऑस्ट्री में इसकी क्लिनिकल साइड आती है या वाइवा शॉर्टेज में, या आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता है। यूनिटल वेरिसेला is mostly caused by maternal chickenpox acquired during pregnancy, 25% of the cases. A period of gestation of the infected mother is outcome in the fetus. अगर 7 to 28 weeks of gestation में बच्चे ने एक्वायर किया है तो fetal varicella syndrome होगा, ठीक है। 28 weeks के बाद है तो neonatal child या childhood disaster होगा। 2 weeks before delivery अगर है तो neonatal chickenpox है, और 5 days before and after delivery तो neonatal disseminated chickenpox with septicemia and increased rate of mortality. fetal varicella syndrome और इसमें मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशन है स्किन पे सिकाट्रिशियल स्किन स्कारिंग हो गया इसमें लिम्फ में लिम्फ हाइपोप्लेजिया या तो कोई ना कोई प्रॉपर नहीं बनी होगी। फिजियोलॉजिकल में क्या माइक्रोसेफ्ली है, कार्डियोटोपी है, सीजर माइक्रोसेफ्लिक होंगे बच्चे, मेंटली रिटार्टेड होंगे, सीजर्स के साथ आएंगे। आई में क्या चेंजेस है, कोरियोनाइटिस है, माइक्रोफ्थाल्मिया है और कैटेराइट आएगा। रीनल में आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ बच्चे में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा, स्वेलिंग डिसफंक्शन होगा, एस्पिरेशन निमोनिया। अच्छा, अब किडनी फीवर हम स्किन के हवाले से बात करें तो पॉलीमॉर्फिस पैप्यूल्स, पॉलीमॉर्फिस मतलब मुख्तलिफ होंगी, एक से ज़्यादा टेक्सचर्स हैं, पैप्यूल्स, वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स होंगे। लोकलाइज स्कारिंग होगी, मोस्ट कॉमन फीचर होगा जो कि इसका, और इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इसका, पीसीआर से और सिरानी। ट्रीटमेंट क्या है, न्यूबॉर्न मदर्स हैव varicella fibrosing before their birth, 2 days after the delivery they receive varicella zoster immunoglobulin as soon as possible. All premature infants born 428 weeks of gestation before mother with active varicella delivery should also receive varicella zoster immunoglobulin BZ, and the infant should be treated with asacral lesions. Inherited rubella results from internal infection. प्री कंसेप्शन एक्वायर किया तो मिनिमल रिस्क है, फर्स्ट 12 वीक्स में है, 100% रिस्क ऑफ fetus being congenital infected resulting in major congenital abnormalities, spontaneous abortion 20% of the cases। 0 to 16 वीक्स पे अगर आपने एक्वायर किया बेबी ने तो पहला सिंड्रोम होगा। 16 वीक्स के बाद है तो नॉर्मली कोई परेशानी की बात नहीं है। स्लाइट रिस्क होगा डेफिनेटली का और एफिशिएंसी का, लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है। अभी देखो इसके ब्लूबेरी मफिन रिएक्शन होते हैं, मफिन की तरह के टेस्ट होते हैं, ब्लूबेरी मफिन ब्लू होता है। Congenital Ferret syndrome में क्या है, क्लासिकल ट्राइड है that is cataract, heart defects and circular hearing loss. Many other abnormalities divided into transient, permanent and developmental. Transient में you have low birth weight, particular varies, homotherapy capra, bony lesions, Finnegan cystitis, hepatitis, pneumonias, pneumonitis, symptomatopathy. Permanent you have sensorineural hearing loss, heart defects, pulmonary stenosis, pulmonary vasculosis, PDA and PST, eye effects for retinopathy, cataract, glaucoma, myopia, and other defects include microcephaly, diabetes, and thyroid. Developmentally, we have sensory hearing loss, mental retardation, and diabetic thyroid. Distinct round red to purple infiltrated macules, 3 mm in diameter, site is mostly placed as scalpa, back of the neck, and tongue. Blueberry muffin, जो आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, पीसीआर कराएंगे, पहला आइसोलेशन होगी, लाइसेंसाइटिस एंटीबॉडी ट्रीटमेंट कैसे होगी, एक्चुअली इंशाल्लाह करना पड़ेंगे, इन्फेक्शन ना हो आप लोग पढ़ चुके हो। अच्छा, आगे बर्थ मार्क्स और थोड़ा टेस्ट होंगे। Birthmarks you have they represent an excess of one or more phenome component distinct by unit area. These components can be blood vessels, they can be lymph vessels, pigment cells, suspicious glands. They are very common lesions, and vascular birthmarks are more common as compared to the lymph vessels, pigment cells, birthmarks, epidermal birthmarks. This ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके ऑस्ट्री का पेशेंट का टाइम है। मोस्ट कॉमन वैस्कुलर लीजन होती है appears as irregular dull pinkish to red macular area often the final layer lenticulaceous, macular or nape of the neck को अगर स्टॉप आई होते हैं।
upper eyelid is the color code. Most of the regions fade away rapidly and disappear within a year. क्या तो vascular lesion होती है, regular reddish pinkish सी एक macular lesion होती है और genital telangitis ऐसे करके ना इसके वो निकली होती है पार्टीशन. Open shape usually present at birth with a large irregularity that includes that area. There is no matter of the face which is the vascular malformation molecules. It persists throughout the life. फोटो सेम की कहते हैं जैसे एक फोट होती है ना और ये वाइन जैसे गेंद के फोट होती है बदल होती है ना तो ये उसके परसिस्ट करता है ये दफा नहीं है और इरेगुलर सा होता है जैसे कि अपनी गिराफ स्केल करती है प्लेलिस्ट की कहते हैं इसको ट्रीटमेंट क्या पास है लेजर थेरेपी है लेजर फेस को कट किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट पोजीशन या कॉस्मेटिक थेरेपी करके फिजियोथेरेपी सेटिंग करके भी हम इसको कवर कर सकते हैं. Mucus marginosa और telangiectasia congenita क्या होता है कि it is a reticulated mottling of the skin that persists since birth, does not disappear after forming few centimeter hole in a heavy fungal environment and is the most commonly affected बार-बार आ रहा है फिर associated rate of hepatitis and lead. Both of these lesions during the first years of life therapy should be deferred to raise coordination. For persistent reticular erythema, polythyroid therapy is used to fertilizing the affected cells. Strawberry mark of the over gives in form of circle-type, oval or round, soft dome swelling of the intense scarlet color arises from immature endoplastic tissue, usually present on the head, neck region, forehead, trunk, not present at birth, developed during first weeks of life. 90% of the lesions they appear around 7 years of age. Treatment steroids है या फिर pulse diet जैसे थेरेपी अगर persist. Strawberry मोने स्पॉट्स बहुत दफा आपसे करोगे जिसमें हाँ जी इसका क्या करें कुछ नहीं है. These are flat, straight, gray, dark blue, black, simple, multiple, large, macular lesions of the various sizes. These indicated as the lumbar facial area and fade away around after first years of life. And occasionally they may persist in adulthood. This represents collection of spirits and melanocytes that are located each other. And melanocytes की collection of painfully fade out होगा. किसी को नहीं है किसमें capillary spots. These are light brown bone macules. Again, a very important site as far as the OSPE is concerned. Have distinct borders, rarely present at birth, but increases in number with age. आइडेंटिफाई तो आप बाहर लोगे काफी पता होगा लेकिन पता चल जाएगा देखते ही लेकिन आपको बाकी चीजें समझती है ना कि आप ट्रीटमेंट अगर पूछे तो क्या करें. Multiple capillary spots occur in type 1 neurofibromatosis, large solitary. These are usually isolated findings. They may be seen in Albright and Puget syndrome. Now we come to infestation. Infestations may most important. Scabies. Scabies represents may represent as early as 3 to 4 weeks of age. Never present at birth. Units do not age, but they present extensive rashes, irritability, cooperating and pain. This is a common leading to the early pustulation. Clustering and scaling eruption is generalized, including involvement of the head, neck, face, arms, and soul with an early tendency pustular formation. Side is usually the wrist, the bottom of the hand, sides of the fingers, and finger web spaces. चीजें basically क्या होता है कि सीधा वो बड़ो करती है ना scabies किससे होती है? sarcoptes scabies it might होती है. बच्चों में you have environmental predator में itching is worse and the patient is warm. 5% permethrin oil to all household members for hair removal, anti-semitic to control the itching, disinfection of the recently used clothing, linen, stuffed animals. Investigation the escaping of the skin to the unscratched burrow reveals a female mite or her eggs. Okay, radiculosis capitis, weekend June. Many confined with the suboccipital region with extension onto the posterior auricular and abdominal region. Overcrowding, poor hygiene, low fixation of the are the main triggers. Itching of the scalp is a prominent symptom. Oozing, crusting, eczematization of scalp with the lethal lymphedema is common. Treatment is methadone, left on the scalp for 12 hours, then washed off.
permethrin or gamma benzene hexachloride also used and maintain properly. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉपर हेल्दी। स्कूल में जाने वाले बच्चों लड़के लड़कियों दोनों, लड़कों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, लड़कों में भी पड़ जाती है जरूरत, ठीक है, जो जरा गंदे रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, नहाते नहीं। Genodermatosis, ichthyosis, it is an excessive scaling of skin, dryness and scaling of skin. 4 types हैं, vulgaris, explain ichthyosis, lamellar, bullous. Lamellar हमारे लिए important है, मेरे लिए including BB, large dark platelet scales are formed. Ectopion and labium, present at birth or can appear after birth, inherited autosomal recessive trait. स्किन ग्लिसनिंग स्किन 5 मिनट मेमोरी स्टेप्स कवर कर जाती है, ठीक है। ये देखो हार्लेक्विन फीटस इज रेयर severe form of congenital ichthyosis, very poor prognosis, वो खौफनाक हार्लेक्विन में। इक्थायोसिस की ट्रीटमेंट में कोई ऐसा हमें वो नहीं है, ट्रीटमेंट हाइड्रेशन करनी है, एप्लीकेशन डुप्लिकेट्स, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो ट्रीट करें। बुलस डिसऑर्डर, epidermolysis bullosa, it is a group of inherited bullous disorders of the investment membrane with the picture formation in response to mechanical trauma. अच्छा, इसकी अब 2 टाइप्स होती है, एक सिम्प्लेक्स और एक डिस्ट्रोफिका है। डिस्ट्रोफिका ज़्यादा खतरनाक होती है। सिम्प्लेक्स में सिंपल आपके ना बुला बन जाते हैं और फिर रप्चर करते हैं, स्कारिंग होती है। लेकिन जो आपकी डिस्ट्रोफिका है उसमें मल्टीपल स्कार है, बुला फॉर्मेशन फॉलोड बाय स्कारिंग। उसकी वजह से क्या होती है कि आपकी लिम्स शेड ऑफ, फिंगर्स शेड ऑफ हो जाते हैं। देखो ना, जैसे इस बच्चे की देखो फिंगर्स हैं, वो इतनी स्कारिंग हुई और इतनी फाइब्रोसिस की वजह से वो सख्ती हो गई। ये वेरी टेरिबल मिसेबल कंडीशन। सिम्प्लेक्स बुलोसा डिस्ट्रोफिका ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स में न्यूरोफाइब्रोसिस है, autosomal dominant disease है, pigmentation है, tumor of the nervous system manifesting change in the skin, 6 or more epilepsy, macules more than 0.5 cm in diameter, prepubertal individual more than 1.5 cm in diameter, post अगर हो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, prepubertal में 1.5 से ज़्यादा हो, pubertal में, post pubertal में और 6 या से ज़्यादा हो तो डायग्नोस्टिक होते हैं न्यूरोफाइब्रोसिस। darkish hyperpigmented macules है ना, आपको फेस नहीं है, फ्लैट नहीं है। अच्छा, एक्सिलरी और इनवॉल्व फ्रैक्चरिंग होती है, दे आर प्रेजेंट एट बर्थ, मिड हेल्प और लेटर ऑन, दे आर ओवल पेल राउंड पैचेस scattered all over the body surface area reliefs for trunk and extremities sparing फेस में आपको कभी नहीं मिलेंगे, मोस्टली आपको एक्सिलर रीजन में मिलेंगे और बैक में मिलेंगे। Tuberous sclerosis is a kind of serious mental retardation and adenoma sequentium autosomal dominant disorder है और पेरिंगल जिंजिवल फाइब्रोमास बन जाते हैं, ठीक है। नाखून के आसपास फाइब्रोमास और दाम उसके शैगिंग खास होता है, ये भी वो भी थीमिया, इसलिए आपको लग रहा है लास्ट बहुत हाइपोपिगमेंटेड खास होता है। These are very diagnostic of tuberous sclerosis. Metabolic disorders, we have Kwashiorkor, which is characterized striking cutaneous and hair changes, in association with developmental, mental, and gastrointestinal features. Cutaneous erythema develops first and progresses to fine discrimination. Circumoral cutaneous pigmentation of purple patches are also present. Ectodermatitis in Terrapista. It is characterized by ectodermal and periofacial vesiculobullous pustular eczematized skin lesions, blisters collapse beginning to dry and plus secondary infection like candida is very common and very much strongly related to zinc deficiency. Zinc deficiency वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें failure to thrive करते हैं, बार बार chronic diarrhea की complaints के साथ आते हैं, उनमें zinc deficiency की वजह से ये skin changes आ जाती है कि आपके वैसे कि वो बुलस लीशंस डेवलप होती है, रप्चर होती है, स्कारिंग होती है और इस तरह की हाइपोपिगमेंटेड पैचेस आपको 2 जगह पर, एक तो आपके फेस पे जरूर मिलेंगे, उसके बाद डैपर एरिया में मिलेंगे और साथ आपके पैर एरिया में मिलेंगे। अगर आपको मिले तो आपको जिंक डेफिशिएंसी लीडिंग टू एक्टोडर्माटाइटिस एंड डेर्मेटाइटिस जिंक सोचना चाहिए। अच्छा, कोई जिंक लेवल कम होगा, आपको प्लाज्मा में चेक करेंगे और हेयर यूरिन में चेक करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, जिंक प्रोपेनल जिंक सल्फेट, इस तरह के आपको लीशंस मिलेंगे।
Excellence conditions you have capillary urticaria, chronic recurrent eruption of interval skin, usually 2 to 7 years of age. Treatment क्या है इसके? एंटीहिस्टामिन्स हैं और शॉर्ट कोर्स ऑफ सिस्टेमिक स्टेरॉइड हम दे सकते हैं. Atopic dermatitis, eczema characterized by intense itching and a relapsing course in infants and children. 70% cases we have a foster family history, most of the anti-genital particular fossa most commonly involved. देखो ये जो एरियाज है ना वो इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा. सामने हिस्ट्री मिलेगी. एटोपिक dermatitis में ट्रीटमेंट तो एमोलियंस लेने का स्टेरॉइड्स एंड एंटीहिस्टामिन्स लेने. पी अल्फा ड्राई स्लाइड के लिए हाइपोकम्यूनिटी एरियाज हैं. आपको उसके बाद मैनेजमेंट है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स. ये कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं होते. ठीक है, बेसिकली ये हाइपोकम्यूनिटी एरियाज डेवलप हो जाते हैं. हीरोजिया हीरोज की तरह के होते हैं. सिंगल लोकल एनुलर एर्थमेटिस लीजन्स हेरिटैच इनको कहते हैं. और असली आपको इरिटेशन अगर है ज़्यादा तो 1% टॉपिकल स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं इसमें. चलो ये अब जरा तुम लोगों की टेस्ट हो जाए. अब सारे जो है ना हाजिर हो जाओ. जब तक तुम लोग बताओगे नहीं ना मुझे कि क्या है, चैट बॉक्स में लिख दो जिसको आता है. शाबाश. कोई इंटरेस्टेड नहीं है मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. लेक्चर नहीं खत्म होगा. बताओ भी. हाँ जी बोलो भाई. क्या है ये? हाइपरपिगमेंटेड पैचेस और मैक्यूल्स है. ठीक है, एक्सिलरी एरिया में. तो क्या वो नीचे लिखा हुआ है कैपिलरी स्पॉट्स. देख के भी ना बताओ क्या ये क्या है. एनीवन? हाँ भी बताओ अब क्या है ये. हाँ हाँ बताओ. 4 पॉइंट्स स्केल है. ये क्या है? कैपिलरी हेमेंजियोमा, स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा. ये क्या है? क्या है? इसका क्लोजअप किया इससे बड़ा लग गया. इससे बड़ा है नहीं. स्किन कलर चेंज है, फ्लैट है और छोटी है ना बालों की तरह. मैक्यूल भी हो सकता है, पैक्यूल जानने से आप इसको मेजर करें. ये क्या है? रेस लीजन है तो इसको क्या कहेंगे? पैक्यूल. कोई हाल नहीं है. अब बताओ. हाइपोपिगमेंटेड है, स्किन चेंज है और पैच. ये क्या है? रेस है, पैल्पेबल है और डर्टी फ्लूइड है. पस्ट्यूल. अब हाँ ये बताओ. फ्लूइड फिल्ड है, छोटा है, सिस्ट है, बड़ा है तो बोला. आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. लेकिन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आई एम हियर टू आंसर. यू आर मोर देन वेलकम. आई वुड बी ग्लैड अगर आपने कुछ पूछा. Everyone is equal. Okay. This is a message from a dermatologist friend of mine. I am a dermatologist and I make rash. Okay, thank you very much. अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो you can ask me.